हेलो एवरीवन, दिस इज सीए प्राजक्ता मोंढे। होप आप सभी लोगों की प्रिपरेशंस बहुत अच्छे से चल रही हैं फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशंस. In this video, we are going to discuss the judicial update that has been provided by the Institute for the CA Final November 23 examinations. We all very well know that case laws are a very important part of our taxation syllabus. And when we talk of CA Finals, questions based on case laws are asked in your examination. So these case laws have been given to us as a part of the important case laws that have been released. And specifically these are kind of updates की जो कुछ recent case laws हैं जो हमारे लिए relevant हैं. So as part of judicial update, Institute has provided the same to us. Now this judicial update contains both the case laws that were released for May 23 attempt as well as additional that have been released for November 23 attempt. So in this video, we'll be discussing the case laws that have been additionally given for November 23. The link for the judicial update, which I have already recorded for the May 23, the case laws that were introduced for the May 23 attempt will be provided to you with this video. So you can cover both the judicial updates. So let us discuss the case laws that have been added for November 23 attempt specifically. Chali. So the first one is PCIT versus Anna Saheb Patil Sahakari Patpedi Limited. The case law is of 2023 and it's a Supreme Court decision. So let us discuss what is the case, then we'll discuss the sections and then move to the conclusion. Would a cooperative society engaged in providing credit facilities solely to its members eligible for deduction under ATP? कोऑपरेटिव सोसाइटी है, अपने मेंबर्स को क्रेडिट दे रही है, तो क्या एटीपी जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए एक सेक्शन होता है एटीपी जिसमें उन्हें बेनिफिट्स और रिडक्शंस दिए जाते हैं, वी ऑल वेरी वेल नो, क्या उसके लिए वो एलिजिबल रहेगा? सो एटीपी में आपको क्या क्या डिडक्शंस होते हैं? लॉट ऑफ डिडक्शंस हैव बीन गिवन. However, the section mentions that ATP shall not be available to a cooperative bank other than a primary agricultural credit society or a primary cooperative एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक. तो अगर कोऑपरेटिव बैंक है तो वो एटीपी में कवर, उसको जो भी बेनिफिट्स हैं वो अवेलेबल नहीं रहेंगे. In this case, the issue was that whether a cooperative society, if it is providing benefit only to its members, is it eligible? So the decision that was given by the apex court was that yes, it will be eligible for deduction under ATP because it does not provide credit to the general public and also it is not registered under the Banking Regulation Act. It cannot be treated as a cooperative bank. और जब तक वो कोऑपरेटिव बैंक नहीं मानी जा रही है उसके ऊपर आपको कोई भी बेनिफिट्स डिनाई नहीं करने हैं. सो अल्टीमेटली द सोसाइटी कैन क्लेम द बेनिफिट्स ऑफ एटीपी. चलिए, सेकेंड वन, CIT versus Cognizant Technology Solution of India Private Limited, again a Supreme Court decision. Is deduction under section 10AA available in respect of foreign exchange gain solely relating to the export business of the assessee? Okay, good question. So the case, this particular case laws can also be asked as an adjustment of your full questions. Okay, जरूरी नहीं है आपको specifically case law related ही वो लोग question देंगे. बहुत सारे बार case law में जो adjustment दिए जाते हैं वो as a part of your full question भी पूछ सकते हैं. जैसे यही अगर हम बोले तो आपको मान लेते हैं assessment of entities का एक question दिया है, उन्होंने कंपनी का question दिया है और 10AA से रिलेटेड उसमें कुछ वर्किंग दिए, एक एडजस्टमेंट दिया है कि कंपनी इज एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर 10AA, इतने का एक्सपोर्ट हुआ, इतने का टोटल टर्नओवर हुआ और इतने का उस पे फॉरेन एक्सचेंज का गेन लॉस जो भी है वो आपको गिवन है. तो क्या उसके लिए आप 10AA में किस तरीके से कैलकुलेशन करोगे, तो आप वहां पर इस केस लॉ के रेफरेंस से सॉल्व करोगे. गेटिंग द पॉइंट? सो देयर आर अ लॉट ऑफ एडजस्टमेंट्स इन द नॉर्मल न्यूमेरिकल क्वेश्चंस एज वेल व्हिच आर गिवन ऑन द बेसिस ऑफ case laws. That is also a very important thing that is to be kept in mind. So क्या दिया हुआ है देखें. 10AA किस चीज का डिडक्शन होता है? We all very well know कि जो यूनिट्स होती है SEZ में वो आपकी एक्सपोर्ट टर्नओवर से रिलेटेड जितना भी प्रॉफिट होता है उसका डिडक्शन क्लेम कर सकती है अंडर सेक्शन 10AA सब्जेक्ट टू डिफरेंट परसेंटेजेस, 100%, 50%, and a lot of conditions are there. We know that section very well. So basically the issue is
कि अगर हम फॉरेन एक्सचेंज में डील कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वहां पर हमारा कुछ ना कुछ एक्सचेंज गेन लॉस जनरेट होता रहेगा। तो क्या हमारा जो एक्सचेंज गेन जनरेट हो रहा है हमारे एक्सपोर्ट बिजनेस की वजह से, क्या हम उसको भी अपने प्रॉफिट में लेकर के 10AA का डिडक्शन ले सकते हैं? सो क्या बताया है देखें, it in order to allow the deduction, it has to be seen whether such benefit earned is derived by the virtue of exports made by the assessee। अल्टीमेटली उनका कहना क्या है, एक्सपोर्ट से रिलेटेड आपका जितना प्रॉफिट है उतना हम आपको बेनिफिट देने को तैयार है। The exchange value based on upward or downward of the rupee is not in the hands of the assessee, and the assessee does not determine the exchange value of the Indian rupee. Therefore, when the fluctuation in foreign exchange rate was solely relatable to the export business and the higher rupee value was earned by virtue of such exports, the deduction under 10AA would be available in respect of such foreign exchange gains। तो अगर हायर आपको अमाउंट रिसीव हुआ है, फॉरेन एक्सचेंज गेन हो गया है, तो वो भी आपके प्रॉफिट में लेकर के आप उसका भी डिडक्शन क्लेम कर सकते हो। ओके, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और इस पर आपको एक एडजस्टमेंट के रूप में भी वो पूछ सकते हैं, है ना। नाउ लेट अस मूव ऑन to the next additional case law that has been given. Now this is a very important change, because this case law changes the case laws that have been already given in the module and the decisions that were already taken in respect of this issue. So let us talk about this। a very ऐसे 2-3 केस लॉज हैं आपके अभी वाले जुडिशियल अपडेट में जिन्होंने पुराने डिसीजंस को रिवर्स, मतलब एक तरीके से ओवरराइड किया है। तो आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है इन चीजों के ऊपर, कि क्या होता है हम मॉड्यूल पढ़ लेते हैं, हमने पहले से पढ़ा हुआ होता है, हमको ध्यान रहता है कि हाँ उस समय पे तो ये जजमेंट दिया था तो हम उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व कर देते हैं, लेकिन वो जजमेंट जो है वो एक तरीके से आप कह सकते हो ओवर रूल हो गया है अब, है ना। तो वो किस बारे में बात करें हम देखते हैं। सिंगापुर एयरलाइंस एक्सेट्रा वर्सेस CIT and different CIT TDS, and the case law is of Supreme Court again। So let us talk about the issue, and there are different airways। Would the additional income earned by travel agent over and above the minimum fare fixed by the airlines be also subjected to TDS under 194H besides the standard commission? अगर आप लोगों ने मॉड्यूल के सारे जो केस लॉज दिए हैं आपको वो ध्यान से पढ़े होंगे तो आपको बिल्कुल ध्यान आएगा कि इस बारे में केस लॉज आपको ऑलरेडी गिवन है, सिग्निफिकेंट केस लॉज जो हर चैप्टर के बाद आपको दिए होते हैं उसमें। सो लेट अस डिस्कस हुआ क्या है। So basically, the base fare for air tickets was set by the International Air Transport Association IATA, जो है वो एक बेस फेयर खुद सिलेक्ट कर देता है कि इतना तो आपको रखना है, इसके ऊपर फिर आपकी मर्जी, आपको कस्टमर जितना पैसा देने को तैयार है आप आपका प्रॉफिट कमाओ और आप उसके हिसाब से आप सेल कर सकते हो, इससे ज्यादा आपको नहीं जाना है। सो बेसिकली वो एक तरीके से आप फेयर लगा देते हैं ताकि ओवर प्राइसिंग नहीं हो जाए। सो एयरलाइंस बाकी अपने प्रॉफिट के हिसाब से डिसाइड करके उस उतने फिगर पे या उससे कम पे जो है वो सेल कर सकती है। सो द एयरलाइंस टू सेल देयर टिकट्स फॉर अ नेट फेयर लोअर देन द बेस फेयर बट नॉट higher। The air carriers were also required to provide fare list to the Director General of Civil Aviation, तो कि ताकि कोई एयरलाइन जो है वो इस तरीके से माल प्रैक्टिस में इन्वॉल्व तो नहीं है। The IATA would provide blank tickets to the travel agent acting on behalf of the airlines to market and sell the travel tickets। The arrangement between the airlines would be governed by the passenger sales agency arrangements। तो blank tickets उनके पास रहेंगे क्योंकि obviously वो अपने हिसाब से प्राइस को डिसाइड कर सकते हैं। Once these tickets are sold, a fixed percent commission designated by the IATA would be paid to the travel agent for its standard commission based on the base fare set by the IATA। This would be independent of the net fare quoted by the air carriers themselves। The standard commission is subjected to TDS। Obviously, commission मिल रहा है आपको टिकट बेचने के लिए तो commission में 194H में डिडक्शन मिलेगा। Within this framework, airlines would have no control over the actual fare at which the travel agents would sell the ticket। तो ultimately उन्होंने कितने में बेचा ये तो आपको पता ही नहीं है। The additional amount that the travel agents charged over and above the net fare that was quoted by the airline would be retained by the agent as its own income।
तो सपोज जो एयरलाइन है, खैर नीचे उन्होंने एग्जांपल दिया है तो हम उसी के बेसिस पे डिस्कस करेंगे, बट जो एक्स्ट्रा इनकम हुई ट्रैवल एजेंट की वो तो उसने रख ली, एक तरीके से क्या बोल दिया उसको, सप्लीमेंट्री कमीशन, लेकिन इसके ऊपर तो कोई टीडीएस डिडक्ट किया ही नहीं किसी ने। तो क्वेश्चन ये था कि इसके ऊपर भी तो टीडीएस लगना चाहिए, और दे ऑल वर डिक्लेयर्ड असेसीज इन डिफॉल्ट, पेनल्टी प्रोसीडिंग्स वर डायरेक्टेड। ना रेलेवेंट प्रोविजन में 194H को एक्सप्लेन किया गया है कि जब भी आप किसी को कमीशन या ब्रोकरेज देते हैं तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कैसे भी करके अगर आपको किसी के बिहाफ पे काम करने के बदले में पैसा मिल रहा है, अल्टीमेटली कमीशन क्या है, एजेंसी का काम क्या होता है, किसी के बिहाफ पर काम कर रहे हो, यू आर एजेंट हो आप किसी के, तो इन दैट पर्टिकुलर कोर्स आपको जो भी चीजें आप सेल कर रहे हो किसी के बिहाफ पे, आपको जो इनकम हुई है दैट इज बेसिकली कमीशन, नॉट बीइंग सिक्योरिटी। सिक्योरिटी बेचने पे आपको 194H की एप्लीकेबिलिटी नहीं आती है। नाउ Apex Court noted that the tickets remained the property of airline. Ultimately, there was no transfer in terms of the title. टिकट इसने खरीद के नहीं बेचा है, वो एक अलग बात हो गई कि आपने सारे टिकट्स खरीद लिए और फिर अब आप उसको बेच रहे हो, आपने वो टिकट्स बेचने में फैसिलिटेट करवाया, तो अल्टीमेटली जो पैसा दिया जा रहा है वो तो उसी व्यक्ति को दिया जा रहा है जो ओरिजिनल पर्सन है उसको। आप सिर्फ एक मीडिएटर का काम करो, आपके पास ओनरशिप तो कभी आई ही नहीं थी। Every action taken by the agents is on behalf of the carriers and the airline companies. So basically, this amounts to commission. Apex Court concluded that the contract is agency contract and does not distinguish in terms of stages of transactions कि आपको पहले थोड़ा कमीशन मिला फिर थोड़ा कमीशन मिला, उससे ये नहीं बदल गया कि आपकी नेचर ऑफ रिलेशनशिप तो सेम थी, भले ही आपने टुकड़े टुकड़े में काम किया है, पैसा आपको टुकड़े टुकड़े में मिल रहा है, लेकिन हो तो आप एजेंट ही, तो पूरा पैसा पैसा कहीं ना कहीं आपका है, तो नेचर ऑफ commission only. Apart from this, the PSA agreement set out that any payments collected by the agent pursuant to sale of air transportation and ancillary services were held in a fiduciary capacity for the carrier until a proper accounting was made. सो अभी तक ये चीज तो समझ में आ चुकी है कि जो भी आपका अमाउंट वो ट्रांजैक्शन है उस पर अल्टीमेटली आपका कोई कंट्रोल नहीं है ना, वो सारा कंट्रोल आपके किसके पास है, एयर कैरियर के पास है, यू आर जस्ट एक्टिंग एज एन एजेंट एंड देयरफॉर द डिफरेंस बिटवीन द फेयर्स is treated as a supplementary commission in your case. Once the IATA has made the payment of accumulated amounts, the airlines to deduct tax at source ऑन द एडिशनल इनकम। अब किसके ऊपर आ गई लाइबिलिटी, एयरलाइंस के ऊपर आ गई लाइबिलिटी, क्योंकि जो आईएटी है वो तो बाहर हो गया बेस फेयर को फिक्स करके। As regards applicability of interest, if the recipient of income on which tax has not been deducted, even though it was liable to deduction, has already included that amount in its income and paid taxes, the assessee can no longer be proceeded against for the recovery of shortfall in TDS. It would be open for the revenue to seek payment of interest under 2011A for the period of date of default and deduction and the date of when the recipient paid the income tax. तो बेसिकली हुआ क्या कि एयरलाइन से तो टीडीएस काटा नहीं, क्योंकि उनको लगा यार ये कमीशन नेचर का इनकम तो है नहीं, तो हमको तो टीडीएस काटना नहीं है, वो जो डिफरेंस अमाउंट है उसके ऊपर, और अल्टीमेटली सबके ऊपर नोटिस आए हैं कि आपने शॉर्ट डिडक्शन किया है और उसके आपके जो भी पेनल्टीज और प्रोसीडिंग्स वगैरह हैं वो उनके ऊपर कैरी फॉरवर्ड करी जा रही है। एंड यस, द सुप्रीम कोर्ट हैज आल्सो डिसाइडेड दैट दैट इज अ पार्ट ऑफ कमीशन। वही सब हमने ऊपर पूरा डिस्कस एनालिसिस में यही देखा कि वो अल्टीमेटली तो एजेंट ही है, तो उन्होंने कुछ भी कमाया है तो वो कमीशन ही है, सप्लीमेंट्री कमीशन भी टीडीएस के लिए लायबल तो है। हाँ, लेकिन आप चाहो तो सामने वाले ने अगर अपनी इनकम में उसको जोड़ लिया तो फिर आपके ऊपर से टीडीएस की जो लायबिलिटी है वो हट जाएगी, भले ही नॉन डिडक्शन है तो आपके ऊपर एक्शन तो ली जा सकती है, पेनल्टी लिया जा सकता है, रेवेन्यू चाहे तो इंटरेस्ट कलेक्ट कर सकता है, लेकिन हाँ अब आपको फिर से रिकवरी की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अल्टीमेटली वो पैसा जो है वो सामने वाले ने अपनी इनकम में जोड़ करके उस पर टैक्स पे कर दिया है। सो अल्टीमेटली कंक्लूजन ये है इस पूरी बात का कि अगर ऐसा होता है तो एयरलाइंस के ऊपर टैक्स डिडक्ट करने की लायबिलिटी है। हाउएवर नीचे आपको वही चीज दे रखी है, सुप्रीम कोर्ट हैज ओवररूल्ड द बॉम्बे हाई कोर्ट रूलिंग इन केस ऑफ सीआईटी वर्सेस कतर एयरवेज। ये आपको याद भी होगा, कतर एयरवेज का केस लॉ आपके मॉड्यूल में दे रखा है। रिपोर्टेड इन द सिग्निफिकेंट सिलेक्ट केसेस एट सीरियल नंबर 13 वगैरह उन्होंने सब मेंशन करके दिया है, तो आपको वो हटाना है। एंड अफर्म्ड द कॉन्ट्ररी रूलिंग ऑफ दिल्ली हाई
कोर्ट, उसी में आपको दिल्ली हाई कोर्ट का भी एक और जजमेंट मिलेगा. अकॉर्डिंगली द केस लॉ ऑफ कतर एयरवेज given under significant select cases at the end of chapter 15 and illustration 11 given should be ignored, क्योंकि वो ओवर रूल हो गया एक तरीके से. उसमें जो केस, उसमें जो डिसीजन था, उसके हिसाब से ये डिसीजन अब से एप्लीकेबल किया जाएगा. देखो एग्जाम्पल भी दिया है उन्होंने. बेस फेयर सपोज जो सेट हुआ है वो 1 लाख हुआ है और एयरलाइन ने बोला है कि 60,000 में बेचते हैं. उन्होंने मैक्सिमम लिमिट लगाई है 1 लाख की, 1 लाख के ऊपर तो नहीं बेच सकते. एयरलाइन ने बोला 60 में बेच देते हैं, ठीक है. तो अब 60 के बाद एजेंट ने जो, एजेंट कितने में बेचेगा वो डिपेंड करेगा. जैसे आप देखो सीजन में एकदम से आपके रेट्स चेंज हो जाते हैं, है ना. तो ये सब चीजें ये एजेंट डिसाइड कर रहा है, ट्रैवल एजेंट, कि कितने में अपने को उसको ऑफर करना चाहिए. तो आपका जो 80,000 है उसने वो फिक्स कर दिया. अब जो 1 लाख है उसका 7% तो आपको मिल ही रहा है, एजेंट को वो तो मिल ही रहा है क्योंकि वो टिकट बेच रहा है, तो उसके बेस फेयर पे उसको जो स्टैंडर्ड कमीशन है, अब ये कौन दे रहा है, ये तो उसको ऑलरेडी स्टैंडर्ड फेयर तो मिल ही रहा है ना. लेकिन उसने जो नेट फेयर सेट किया एयरलाइन से, तो एयरलाइन को उतना गया, मतलब एयरलाइन को कितनी इनकम जाएगी, 60,000. ये जो 20,000 एक्स्ट्रा, ये किसकी इनकम हो गई, एजेंट की इनकम हो गई, है ना. तो ये 20,000 के ऊपर टीडीएस की बात हो रही है, इस पे तो कटेगा ही सही. तो ये 20,000 जो है, अब से ये जो अभी वाला हमने केस लॉ पढ़ा उस पर भी टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी रहेगी, कंसिडरिंग इट एज द सप्लीमेंट्री कमीशन. सो दैट इज टू बी केप्ट इन माइंड. चलिए आगे बढ़ते हैं. अगला केस लॉ जो अगेन जो हमारे लिए नया ऐड हुआ है नवंबर में, 11th जो दिया है आपको आपकी जुडिशियल अपडेट में, वो वाला है. सैप लैब्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस आईटीओ एंड अदर अपील्स 2023. Again a good case for question. Now this can be asked as a full proper case law question. In an appeal under section 260A, is the High Court precluded from examining the correctness of the determination of ALP on the ground that once the tribunal determines the ALP, it is final and cannot be subject matter of scrutiny as it does not give rise to substantial question of law. We all very well know that ITAT is the final fact finding authority. ITAT के आगे आप तभी जा सकते हो हाई कोर्ट तक अगर आपका जो फैक्ट का केस, अगर आपका जो केस है वो केस ऑफ फैक्ट्स ना होकर के केस ऑफ लॉ है ना. मतलब अल्टीमेटली वो जो है इट इज अ लॉ, क्वेश्चन ऑफ लॉ बेसिकली, इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट. सो उनका ये कहना है कि अगर आपका एएलपी से रिलेटेड अपील है, डिटर्मिनेशन ऑफ आर्म्स लेंथ प्राइस इन केस ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजंस, तो क्या उस एएलपी को निकालने के लिए आपके ट्राइब्यूनल ने अगर कैलकुलेट कर दिया तो क्या वो वहीं पर फाइनल बाइंडिंग रूल नहीं हो गया, क्या उसके लिए आप हाई कोर्ट जा सकते हो, क्योंकि क्या वो सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ माना जाएगा, डिटर्मिनेशन ऑफ एएलपी. ओके, सो नाउ दे हैव लेट डाउन, the apex court has also let down कि सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ में जरूरी नहीं कि एएलपी सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ होगा कि नहीं होगा, वो उन पर्टिकुलर केस एंड सर्कमस्टांस पे डिपेंड करेगा कि जो अजम्पशंस हमने लगाए, जो भी हमने तरीके से एएलपी कैलकुलेट किया, जो मेथड्स हमने यूज करे हैं वगैरह वगैरह, वो सब कुछ अगर आपके केस ऑफ क्वेश्चन ऑफ लॉ के रिलेटेड है तो फिर यस हाई कोर्ट के पास राइट है. हाई कोर्ट मना, मतलब हाई कोर्ट को मना नहीं कर सकते हम कि आप इस पॉइंट को छेड़ नहीं सकते हो. तो बेसिकली डिटर्मिनेशन ऑफ एएलपी अगर चैलेंज होती है तो यस हाई कोर्ट के पास बिल्कुल ये राइट है कि वो चेक कर ले कि इसमें क्वेश्चन ऑफ लॉ अराइज हो रहा है कि नहीं. अगर उनको लगता है कि नहीं ये पूरा फैक्ट्स का ही केस है तो फिर दे कैन श्योरली ड्रॉप इट, देन दे डू नॉट हैव टू गो इनटू इट. बट इफ इट इज अ क्वेश्चन ऑफ लॉ सो इट कैन बी चेक्ड. दे हैव टू एग्जामिन whether the same is done judiciously or not. तो हाई कोर्ट को ये डिसाइड करने का पूरा पूरा राइट दिया गया है. Therefore, the view taken by the Karnataka High Court in transfer pricing matters, tribunal is final and cannot be subject matter of ये cannot be accepted. High Court का judgment accept नहीं किया जाता. In an appeal challenging the determination is always open for the High Court. तो वो चेक करना है उसको. हाँ, उनको ये जरूर चेक करना है कि वो क्वेश्चन ऑफ लॉ है कि नहीं. क्वेश्चन ऑफ लॉ ही नहीं होगा तो फिर तो कोई भी केस क्वेश्चन ऑफ लॉ नहीं है. तो बट स्पेसिफिकली एएलपी को अलग से ऐसा नहीं बोल सकते आप कि ये क्वेश्चन ऑफ लॉ में आ ही नहीं सकता. ठीक है, सो यस हाई कोर्ट हैज द अथॉरिटी. चलिए मूविंग ऑन नेक्स्ट 12th वन, यूएस टेक्नोलॉजीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस सीआईटी. सुप्रीम कोर्ट डिसीजन 2023 का है, नया नया केस लॉ है. कैन पेनल्टी अंडर सेक्शन 271C be levied for the non-payment of belated remittance of TDS at source to the credit of the government? तो पहले 271C की बात कर लेते हैं, होता क्या है.
Applicable in case of failure on the assessee to the part of deduct the whole or any part of tax as required by or under the provisions of Chapter 17B of the Act. The words fails to deduct are clear and it does not speak about belated remittance of the tax deducted at source. Plain reading से ये पता चलता है कि no penalty will be leviable on belated remittance after it is deducted by the assessee. तो क्लियरली उन्होंने वो 277(c) का जो लैंग्वेज है वो बता दिया. द वर्ड्स फेल टू डिडक्ट कैन नॉट बी रेड एज फेलियर टू डिपॉजिट. क्लियरली लिखा है फेल टू डिडक्ट. Therefore, on correct interpretation, no penalty would be leviable under 271(c) on delay remittance to the tax deducted at source after deducting it. So basically आपके ऊपर दूसरे इंटरेस्ट वगैरह के एक्शंस ले सकते हैं वो, अगर उन्हें लगता है कि वो वाली चीज आपने फुलफिल नहीं करी है, कि बिलेटेड पेमेंट किया है और ये सब कुछ. लेकिन पेनल्टी जो 277(c) जिसकी स्पेसिफिकली यहाँ पर बात हो रही है वो नहीं आप पर चार्ज किया जा सकता. अगेन द अपेक्स कोर्ट हैज रिवर्स्ड द डिसीजन ऑफ केरला हाई कोर्ट. यहाँ पर फिर से वैसा ही हुआ है. इन केस ऑफ CIT TDS वर्सेस यूरोटेक मैरीटाइम एकेडमी, द सेड केरला हाई कोर्ट कोर्स is no longer relevant and has to be ignored. Okay, so let us talk about the this case law. तो simple short and sweet सिर्फ इतना ही है कि failure to deduct है तो ही 271(c) की पेनल्टी लगेगी, otherwise 271(c) की पेनल्टी नहीं लगाई जा सकती. Last case law that is applicable, case law number 13 of the judicial update, ACIT versus AT Devprabha JV and others, 2023 का है. सुप्रीम कोर्ट कैन प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग्स अंडर 276B लॉन्च्ड फॉर डिले इन डिपॉजिटिंग टैक्स. मोस्टली TDS के काफी सारे हैं हमारे इस बार नहीं. where the period of delay and the amount of TDS were not substantial and the amount of TDS has been subsequently deposited with delay along with interest. जो भी डिपॉजिट डिले वगैरह हुआ हमने इंटरेस्ट सबके साथ पे तो कर दिया बट लेट हो गए, तो क्या प्रोसिक्यूशन हम पे लगाया जा सकता है? तो पहले तो सेक्शन समझ लेते हैं क्या है. 276B, if a person fails to pay to the credit of the government the tax deducted as required shall be punishable with rigorous imprisonment not less than 3 months but which may extend to 7 years. बड़ी गलती है, आपने लोगों का पैसा काट के रख लिया और आप जमा नहीं कर रहे हो, तो अगर नहीं किया है तो आपके ऊपर इम्प्रिजनमेंट भी लगाया जा सकता है अंडर 276B. हाई कोर्ट कंसिडरिंग द CBDT सर्क्यूलर where it is mentioned that prosecution shall not normally be proposed where the amount is not substantial and the amount in default has been deposited. आपने गलती सुधार ली, अमाउंट थोड़ा बहुत ही था, पे कर दिया, उसके साथ जो भी इंटरेस्ट था वो दे दिया, तो फिर ठीक है कि आपने प्रोसिक्यूशन नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, इतना सीरियस ऑफेंस नहीं है. Quash the criminal proceedings and order passed by Special Economic Offences Court against the assessee. The apex court upheld the high court decision and accordingly dismissed the special leave petition. So basically वही वाली चीज हमको यहाँ पर भी ध्यान में रखनी है. तो क्या बोला गया है? CBDT has by circular ये उन्होंने ये बोला है कि accordingly in case of failure to pay TDS or TCS, no prosecution will be proceeded if the TDS TCS does not exceed 25 lakh or delay is less than 60 days and condition है. So again उस केस में आपके ऊपर रिलैक्सेशन है, आप समझ सकते हो. फॉर दीज ऑफेंसेस एक्सेप्शनल केसेस लाइक हैबिचुअल डिफॉल्टर्स वगैरह है, जो केस थोड़ा ज्यादा ट्रिकी है, तो प्रोसिक्यूशन इनिशिएट हो सकता है, लेकिन ओनली विद द प्रीवियस अप्रूवल, अगर अमाउंट थ्रेशोल्ड से ज्यादा नहीं है तो. सो बेसिकली दिस इज डन सो दैट अननेसेसरी लोगों के ऊपर प्रोसिक्यूशन की हार्श जो एक एक्शन है वो न आए. तो कुछ आपको केसेस देखते हैं, अगर आपको लगता है कि हाँ जरूरत है तो बिल्कुल एक्शन ली जा सकती है, अदरवाइज जरूरत नहीं है. So these are the case laws that have been introduced, quite good cases. And the most important thing जो दो जगह हमने बात करी कि पुराने जो केसेस ऑलरेडी चले आ रहे हैं उनके एक तरीके से आप कह सकते हो उनके जगह ऑपोजिट, या हम कह सकते हैं बेसिकली उन डिसीजन से अलग कुछ डिसीजन दिए गए हैं. तो वो बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है कि whenever you are solving the question in examination, you have to keep in mind these things. So these were the case laws, the additional case laws that have been given for the November 23 examination. In case of any doubts, feel free to contact.